हेलो हेलो यशस्वी। हेलो यशस्वी, अनम्यूट कर लीजिए सभी। आप वीडियो ऑन कर सकते हैं, वीडियो ऑन करके रखिए। यशस्वी, शामिली, अनुषा, काव्या। अनुषा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अनम्यूट करके बोलो गुड आफ्टरनून। अनम्यूट अनम्यूट करके बात करो। अनम्यूट करना है, म्यूट आಗಿದೆ ನೋಡು, अनम्यूट ಮಾಡಿ। ಶ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ। ಹಲೋ ಮಾತಾಡಿ। ಹಾ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನುಷಾ। ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳೋಣವಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? 4 o'clock ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್. ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ? ನಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಸರ್, ನೀವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಆರಾಮಿದ್ದೀನಿ. ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಡನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಶ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ 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 करके बोलो। ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಶಸ್ವಿ. ಹಾ, ಶ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಕರ್ಲೋ. ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು. ಹಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಈಗ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು. ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ. ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ करो श्यामिली। हाँ, वीडियो वीडियो ऑन है, अभी म्यूट हुआ, उसे अनम्यूट करना। ಮಧ್ಯೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಬಟನ್ ಇದೆ ನೋಡು, ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ? ಈಗ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಚಿತ್ರ ಹೋಯ್ತು. ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಚಿತ್ರ. ಹಾ, ಎಸ್, ಈಗ ಎರಡು ಸರಿ ಇದೆ. ಮಾತಾಡಿ ಈಗ. ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ ಶ್ಯಾಮಿಲಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೀಯಾ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಆಯ್ತು. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ನಿದ್ದೆ ಬರೋ ಟೈಮಾ? ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮಾ? ನೋ ಸರ್. ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಓಕೆ. ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಬೇಜಾರಾಯ್ತಾ ಏನಾದ್ರು? ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ರೆಡಿ, ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಇದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ಇಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾವ್ಯ. ಕಾವ್ಯ ಕಾವ್ಯ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡು, अनम्यूट करो। काव्या काव्या कौन बोलेगी अभी? काव्या या यशस्वी? काव्या अनम्यूट करो। काव्या यशस्वी कौन बोल रही है अभी? यशस्वी के मात ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾ ಸರ್. ಹಾ, ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಹಾ, ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿಂತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವ್ದು ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಯಶಸ್ವಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. म्यूट। हाँ, ಈಗ ಆಯ್ತು, अनम्यूट अनम्यूट। कैसी हो यशस्वी? अच्छी। खाना हुआ? खाना खाया तुमने? ओके, अभी सर। क्या कर रही थी? नींद हुई क्या? सोकर उठी हो? मैं नींद नहीं करती हूँ। दोपहर को सोती नहीं?
नहीं। हाँ वेरी गुड, अच्छी आदत है ना? बहुत अच्छी आदत है। मैं कभी कभी सोता हूँ, वो मेरी बुरी आदत है। ज्यादा नहीं सोता, एक 20 मिनट की नींद चाहिए मुझे। हाँ सर। और काव्या, काव्या आएगी और उनको बताया क्या? और कौन, लावण्या और हमारा लड़का लावण्या नहीं आई ना? उसे किसी ने बताया फोन करके? कांटेक्ट किया क्या? नहीं सर। नहीं किया, करना था। ಯಾರಾದ್ರೊಬ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಆಯಿಷಾ ಸಿಗಲ್ವಾ? ಆಯಿಷಾ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅವಳು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸಹ ಬರುದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಆಯಿಷಾ. ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ ಇವನು ಸನತ್ ಸನತ್ ಡೌಟಾ? ಅವನದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾರು? ಅಷ್ಟೇನಾ? ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರಾ? 4 + 2 6. ಲಾವಣ್ಯ, ಅದೇ ಲಾವಣ್ಯ ಬರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಲಾವಣ್ಯ, ಸನತ್, ಆಯಿಷಾ 7 ಅಲ್ಲ ನೀವಿರೋದು? ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ. ಈಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ರಿಗುವಾ? हाँ आप सबको सुनाई दे रही है ना मेरी आवाज? सर। मैं पाठ पढ़ा सकता हूँ ना? हाँ सर। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ 2200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಇದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇಯರ್ಫೋನ್. यूज ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. तो आपके लिए कौन सा नाटक है पता है ना? नाटक का नाम क्या है? दीवार। आप बिना दीवारों के घर। बिना दीवारों के घर। जिस घर में दीवार ही नहीं है, जिस घर में दीवार ही नहीं है, उस घर की कल्पना कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते ना? वैसा घर गिर पड़ता है। इसीलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। क्योंकि उनका घर है ना। चलेगा। हाँ ओके। तो बिना दीवारों के घर की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए घर के लिए जिस प्रकार दीवारों की जरूरत है, वैसे ही एक घर, एक परिवार के लिए पति पत्नी उतने ही जरूरी है। एक परिवार के लिए किसकी आवश्यकता है? किन किन लोगों की आवश्यकता है? पति पत्नी बच्चे, है ना? ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಡೆಗಳು ಬೇಕು. ಪರಿವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ, ಗಂಡ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಹೆಂಡತಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಮಕ್ಳು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೂ ಅದು ಪರಿವಾರ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ವಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ, ಅಲ್ವಾ? वार अंद्रेनु युद्ध। इसीलिए यहाँ जो नाटक है उसमें एक सामाजिक जो समस्या है उसके बारे में बताते हैं। पहले मैंने इसके बारे में आपको बताया था ना, पिछले क्लास में बताया था ना? बताया था। हाँ, इसलिए मैं सीधा आज नाटक शुरू कर दूंगा। तो हम ऑनलाइन में इस नाटक को पूरा कर देंगे। तो आज मैं शुरू करूं? सभी तैयार है ना? अभी आपके पास, अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं, वीडियो ऑन करके रखिए, क्योंकि आपकी एक्सप्रेशंस मुझे चाहिए। बिना उसके मैं पढ़ा नहीं सकता। अगर नहीं तो अगर आप सिर्फ ऑन करके आप कहीं अपना काम करते रहेंगे तो मैं क्या करूं? इसलिए आप वीडियो ऑन करके रखिए और म्यूट कर दीजिए। ओके, जब मैं पढ़ाता हूं तब दूसरे लोग, उनकी आवाज यहां तक नहीं आनी है ना। अगर बीच में कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, होगा ना? काव्या से बात नहीं हुई ना? काव्या से अभी है, काव्या है लेकिन बोल नहीं पा रही है, शायद नेटवर्क की समस्या होगी। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा। मैंने आपको भेजा है वो नाटक, सबको मिला है ना? अभी आपको देखने की जरूरत नहीं, मैं ही स्क्रीन शेयर करूंगा। स्क्रीन शेयर करके आप उसमें पढ़ भी सकते हैं। जैसे मैं पढ़ते जाता हूं उसका विवरण देते जाता हूं, आप भी क्या कर सकते हैं?
उस नाटक को पढ़ते हुए साथ में पढ़ सकते हैं। अगर मैंने कोई गलती की पढ़ते समय, आप उसे ठीक कर सकते हैं। हाँ सर, वो सर ने देखो ठीक तरह से नहीं पढ़ा, वो ऐसा लिखा है, वो सर ने ऐसा कह दिया, है ना। तो भी आपके सामने वह किताब आ जाएगी, वह नाटक आ जाएगा। नाटक का नाम क्या है? नाटक का नाम बिना दीवारों के घर। अब मुझे कहाँ जाना है? एक कोने में जाना है। कोना, कोने का मतलब क्या है? कोना, ಕಾರ್ನರ್। ಕೋನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಕಾರ್ನರ್। ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ सबके सामने किसको लाना है भी? नाटक को लाना है। नाटक का नाम क्या है? बिना दीवारों की। हाँ, बिना दीवारों के घर। और लिखने वाली लेखिका है मन्नू भंडारी। यहाँ W हुआ है, उसे मत देखना। मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी के बारे में मैंने आपको उस दिन बताया है। तो नाटक का नाम क्या है? बिना दीवारों के घर। ओके। तो नाटक में प्रमुख रूप से क्या कौन होते हैं? पात्र होते हैं। बिना पात्रों के नाटक रहता है क्या? नहीं। पात्र अगर है तो उसी को हम नाटक कह सकते हैं। उसमें संवाद होता है। संवाद का मतलब है कॉन्वर्जेशन, वार्तालाप होता है ना। तो यहाँ भी कुछ ऐसे पात्र है जिनके माध्यम से नाटक आगे बढ़ता जाता है। तो पहले हम पात्रों का परिचय ले लेंगे। पात्र कौन कौन से है? यहाँ अजित पहला नाम है, शोभा और एक है। तो अजित और शोभा ये दो जो है, ये पति पत्नी है। तो इसमें पति कौन है पूछने की जरूरत नहीं है ना? पूछने की जरूरत है नहीं है। पति अजित है और शोभा पत्नी है। और एक ऐसी ही जोड़ी है मीना और जयंत। अजित और शोभा दोनों पति पत्नी है। पूरी तरह से मैं हिंदी में बोलूं तो कोई ऐतराज है, समस्या है? ಹಿಂದಿನಲ್ಲೇ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಕನ್ನಡ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದಾ? नहीं। नहीं ना, आप समझ सकते हैं ना? एक 10% ही कन्नड़ में बोलूंगा, बस उतना काफी है। 10%। काव्या आई हो ना? हाँ, अजित और शोभा, अजित और शोभा पति पत्नी है। इस नाटक में अजित पति है और शोभा पत्नी है। और एक जोड़ी है मीना और यशस्वी, शायद। अभी सभी आए हैं ना? काव्या आई हो और यशस्वी भी आई है। ओके, यस। अजित और शोभा के बाद और एक जोड़ी है मीना और जयंत। मीना यहाँ पत्नी है और जयंत उसका पति है। और ये दोनों साथ में रहते हैं, अजित और शोभा साथ में रहते हैं। और अंत में क्या होता है, मैं अभी आपको क्लाइमैक्स नहीं बताऊंगा। शुरू में, नाटक के शुरू में क्या होता है उसके बारे में तब की स्थिति के बारे में बता रहा हूँ। मीना और जयंत ये दोनों पति पत्नी थे, लेकिन अब अलग हो गए हैं। अब वे दूर दूर हो गए हैं। इसका मतलब है उनके बीच में विच्छेदन हुआ है। किन किन के बीच में? मीना और जयंत के बीच में। और हाँ, यस। और जीजी जो है, जीजी का मतलब है बड़ी बहन को जीजी बोलते हैं। और अजित है ना, अजित की बड़ी बहन है जीजी। अजित की बड़ी बहन जीजी है। जीजी का विवाह बहुत जल्दी हो चुका था, लेकिन पति उसका मरने के कारण बाल विवाह उसका हुआ था। और पति के मरने के बाद ये विधवा बन गई। विधवा होने के कारण इन्हें देखने वाले कोई नहीं थे, इसीलिए यह जीजी आकर अपने छोटे भाई के घर में रहने लगती है। जीजी यहाँ किसके घर में रहती है? अपने छोटे भाई अजित के घर में रहने लगती है। तो अजित, शोभा और जीजी एक ही घर में रहते हैं। आपको पता चल रहा है ना? और बंसी है, नौकर आता है, डॉक्टर आते हैं। जब उनके बारे में नाटक में आता है तब मैं आपको विवरण देता हूँ। नौकर, घर का नौकर, कभी ज्यादा नहीं है इनका पात्र, सिर्फ इन्हीं चारों का ज्यादा है। नेक्स्ट डॉक्टर और सेठ संपतलाल शुक्ला। सेठ संपतलाल और शुक्ला है, श्रीमती शुक्ला है। ये शुक्ला और श्रीमती शुक्ला में क्या संबंध होगा? शुक्ला पति है, श्रीमती शुक्ला उनकी पत्नी है। चावला और श्रीमती चावला में क्या रिश्ता है? चावला पति है और श्रीमती चावला उनकी पत्नी है।
चौधरी और श्रीमती चौधरी में भी वही रिश्ता है। चौधरी यहाँ पति है, श्रीमती चौधरी पत्नी। ये सभी ये एक जोड़ी, 2, 3, 4, 5 जोड़ियां हैं, लेकिन कहानी यहाँ सिर्फ इन जोड़ी के साथ है। ये कभी कभी एक बार आते हैं नाटक में, सिर्फ एक बार इनका प्रवेश होता है। शुक्ला, श्रीमती शुक्ला, चावला, श्रीमती चावला, चौधरी और श्रीमती चौधरी। अब आपको कहानी किनके बीच में है ज्यादातर? इन 5 पात्रों के बीच में। अजित, शोभा, ये दोनों कौन है? पति पत्नी। पति पत्नी है। मीना और जयंत भी पति पत्नी है या थे? अभी विच्छेदन हुआ है, इसीलिए वे पति पत्नी थे, अब अलग रहने लगे हैं। जीजी कौन है? जीजी बोलिए, अपने से कोई अनम्यूट करके बोलिए। बड़ी बहन, किसकी बड़ी बहन है? शोभा की है? अजित की। हाँ, अजित की बड़ी बहन है। क्यों वह अजित के घर में आकर रहने लगी है? क्योंकि बोलिए, कोई भी बोल सकते हैं, उत्तर दीजिए। जीजी अजित के घर में क्यों आकर रहने लगी है? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ನೀವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಏನಾದ್ರು? ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂನಾ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂನಾ? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಶಸ್ವಿಗ. ಆಯ್ತು, ಶ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಕಥೆ ಏನು ಅಂತ? ಹಾ, ಶ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಕರೋ. ಹಾ ಹೇಳು ಶ್ಯಾಮಿಲಿ. जीजी ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? जीजी ಈ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ये जीजी एक स्त्री है। जीजी का मतलब बड़ी बहन। किसकी बड़ी बहन है? अजित की बड़ी बहन। अजित की बड़ी बहन अजित और शोभा के घर में आकर रहने लगी है। क्यों रहने लगी है? इसका विवाह किसी के साथ हुआ था, लेकिन पति मर गया जल्दी ही, कम उम्र में ही उसका पति मर गया। मरने के बाद जीजी क्या हुई? विधवा बन गई। विधवा बनने के बाद उसकी देखभाल कौन कर सकते हैं? कोई नहीं थे, इसलिए जीजी आकर अजित के घर में रहने लगती है। अजित ने किसको आश्रय दिया था अपने घर में? अपनी जीजी, अपनी बड़ी बहन को आश्रय दिया था। यह भी एक प्रमुख पात्र है इस नाटक में। पता चला ना? अब अजित के घर में कौन कौन रहते हैं? अजित, शोभा और जीजी, और अजित और शोभा का एक और उनकी एक बेटी भी है, लेकिन वो बेटी सामने नहीं आते, लेकिन उसकी चर्चा होती है। ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ऐसे इसीलिए बुनियाद ठीक होनी चाहिए। ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಜಿತ್ ಮತ್ತೆ ಶೋಭಾ ಮಧ್ಯೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ? पति पत्नी। मीना और बहन ಯಾರಿಗೆ? ಶೋಭಾ ಜಗತ್ತೆಗ? बहन ಯಾರಿಗೆ? ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಜಿತ್ ಶೋಭಾ ಮಧ್ಯೆ बहन ಹೇಗ್ ಬಂದ್ಲು? अजित और शोभा के बीच पति पत्नी का रिश्ता है। अजित और जीजी के बीच भाई बहन का रिश्ता है। ओके ना? ये मीना और जयंत अभी अलग हो चुके हैं, विच्छेदन हुआ है। बाकी ಪಾತ್ರಗಳು ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಅಭಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಬಂತಾ? ओके, अब देखेंगे पहला दृश्य शुरू होता है। पहला दृश्य क्या है? इसमें पर्दा उठता है। ये नाटक है ना ये। अब आप म्यूट करके रख सकते हैं। जब आपको कुछ पूछना है तो आप बीच में भी पूछ सकते हैं, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ನನ್ನ ಮುಖ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ?
ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಹಾ ಸರ್ ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಎಸ್. ಹಾ ಸರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಓದಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ. पर्दा उठता है ಹೇಳ್ಬೇಕಾ sir? ಎಸ್ ಎಸ್, ಪढ़ो पर्दा पढ़ो. पर्दा उठता है हम्म, अजित का ड्राइंग अस्त व्यस्त सा सवेरे के 8 बजे है भीतर से तानेपुरे पर आलाप लेता हुआ नारी स्वर सुनाई देता है अजित कुछ गुनगुनाता हुआ प्रवेश करता है चेहरे पर इजामता का साबुन लगा है हाथ में काली हजामत. रेजर इधर उधर कुछ हजामत हजामत का साबुन लगा है हाथ में काली रेजर इधर उधर कुछ ढूंढता है फिर खिजलाए से स्वर में पुकारता है। हाँ, यह एक दृश्य है, नाटक शुरू होने से पहले का दृश्य है। पर्दा उठता है, पर्दा का मतलब है नाटक शुरू होने से पहले स्क्रीन जो रहता है ना उसे पहले हटाते हैं, कुछ कई जगहों पर उसे ऊपर खींचते हैं ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನ ಮೇಲೆ ಕೆಳಿಯೋದು ಅಥವಾ ಸೈಡ್ ಗೆಳೆಯೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ? ಯಶಸ್ವಿಗಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಳಿತಾರೆ. अजित का ड्राइंग रूम है, अजित जहाँ जो अपना काम करता है ना घर में, वह उसका रूम है, ड्राइंग रूम है. अस्त व्यस्त सा है, अस्त व्यस्त का मतलब है सही ढंग से सजा हुआ नहीं है, ಸರಿಯಾಗಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಚೆ ಈಚೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿದೆಯಂತೆ. सवेरे के 8 बजे है, सुबह का समय है, सवेरे ಅಂದ್ರೆ सुबह, सुबह का 8 बज चुका है. भीतर से तानपुरे पर आलाप लेता हुआ, भीतर से कोई आवाज सुनाई पड़ रही है, तानपुरे पर आलाप लेता हुआ. तानपुरा क्या है यशस्वी? ಯಶಸ್ವಿ, ತಾನ್ಪುರ. ಹಾ, ತಂಬೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಲಾಪ ತಗೊಳ್ತಾ ಯಾರೋ ಒಂದು ನಾರಿ ಸ್ವರ್ ಸುನಾಯಿ ದೇತಾ ಹೇ, नारी का स्वर सुन, कोई गा रही है, कुछ गा रही है, नारी स्वर सुनाई देता है. बोलते समय तो तानपुरे का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ गाते समय करते हैं ना. हाँ सर हाँ, तानपुरे पर जो आलाप लेता हुआ नारी स्वर सुनाई देता है, अजित कुछ गुनगुनाता हुआ प्रवेश करता है. अजित भी कुछ गुनगुना रहा है अपने में, लेकिन गा नहीं. गुनगुनाना ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಮೆಲ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, उसे गुनगुनाना बोलते हैं. लेकिन अंदर कोई स्त्री गा रही है. चेहरे पर हजामत का साबुन लगा है, किसके चेहरे पर हजामत का साबुन लगा है? अजित के चेहरे हाँ, पर अजित के, क्योंकि शोभा तो शेव नहीं करती ना. चेहरे पर हजामत का साबुन ಅಂದ್ರೆ ಫೋಮ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಶೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ. हाथ में खाली रेजर पकड़ा है. रेजर में क्या चाहिए शेव करने के लिए? ब्लेड चाहिए. ब्लेड चाहिए. इधर उधर कुछ ढूंढता है, फिर खिजलाए से, लेकिन परेशान हो जाता है, उसको ब्लेड मिलता नहीं. स्वर में खिजलाए से, स्वर में पुकारता है. किसको पुकारता है? अभी उसे ब्लेड चाहिए, पत्नी को पुकारता है. जब आपके घर में भी ऐसा ही होगा ना, अगर आपके पिताजी कुछ ढूंढते हैं मिलता नहीं, तो किसको पुकारते हैं? अपनी, उनकी पत्नी को, आपकी माँ को, है ना. तो पुकारती है अजित. शोभा, भीतर से गाने का स्वर पूर्वत आता रहता है, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹಾಡಿನ ಸ್ವರ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ ಇದೆ. आवाज को सप्तम स्वर पर ले जाकर, ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೈ ಪಿಚ್ ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸಪ್ತम स्वर ಅಂದ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿ. हाँ, सप्तम स्वर पर ले जाकर श्रीमती शोभा देवी जी, जोरागी श्रीमती शोभा देवी जी, भीतर गाने का स्वर बंद हो जाता है. इसकी आवाज सुनकर, किसकी आवाज? अजित की आवाज सुनकर शोभा मंच पर प्रवेश करती है. मंच ಅಂದ್ರೆ स्टेज ಅಂತ, ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ मंच ಅಂದ್ರೆ स्टेज. शोभा, क्या है, क्यों घर सिर पर उठा रखा है? शोभा के पूछती है, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हैं? सिर पर उठाने का मतलब है शोर मचाना. ಏನ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೊಂಬೆ ಹಾಕ್ತಿರೋ, ಏನು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ. अजित, मैं पूछता हूँ, इस घर में कभी कोई चीज ठीक जगह पर भी रहती है या नहीं? मैं पूछता हूँ. आप म्यूट करके रखिए, जब मैं पूछता हूं तब अनम्यूट कर देना. ओके.
मैं पूछता हूँ इस घर में कभी कोई चीज ठीक जगह पर भी रहती है या नहीं? ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ವಸ್ತು ಇಟ್ಟಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ? क्यों ऐसा है? शोभा, क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको? क्यों इस प्रकार चिल्ला रहे हैं? अजीत कहता है 1 घंटा हो गया, कहीं ब्लेड का पता नहीं, और तुम हो कि वहां बैठकर आलाप रही हो. आलाप ना कोई गाना ಗಾನ ಆಲಾಪ ರಹಿ ಆಲಾಪ ಹೇಳೋದು ಆಲಾಪನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. तुम तो हो वहां, किसका मतलब तुम मुझे ढूंढ कर भी नहीं दे रही हो, तुम मेरी ಫಿಕರ್ नहीं है, ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನು ಕೇರ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾರ. किस पर कंप्लेंट कर रहा है? अपनी पत्नी पर. ओके, नेक्स्ट आगे क्या होता है? शोभा बोलती ओहो, तो अब आपकी चीजें ठिकाने पर रखने का काम भी मेरा है. वो आपकी जो रेजर हो, ब्लेड हो, इसे भी सही सही जगह पर रखना, वह काम भी मेरा बन गया. अब आप वह काम भी नहीं कर सकते. ಆ ಕೆಲಸನೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಆ ಕೆಲಸನೂ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? सारी चीजें घर मेरा है. दराज से, दराज का मतलब है ड्रॉअर, टेबल ड्रॉअर इंದ ತೆಗೆದು ब्लेड निकाल कर देती है. किसको देती है? अपने पति अजीत को देती है. आपके घर में भी ऐसा हुआ होगा कई बार, है ना? पिताजी पूछते हैं तो माँ आकर दे देती है. ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನೇ ಬಂದ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಬೈದಿರ್ತಾರೆ. ನಿಜನಾ? यस. अजीत, अरे मेरी चीज तुम्हारी चीज क्या होता है? इसमें मेरी चीज और तुम्हारी चीज ऐसा क्या है? सारी चीजें घर की है, सारी चीजें इस घर की है ना, और घर की हर चीज ठिकाने पर है या नहीं, यह देखना औरत का काम है. देखिए ऐसे ध्यान से देखिए, यह देखना औरत का काम है. किसका काम है? घर की सारी चीज को सही जगह पर रखना किसका काम है? औरत का काम है, स्त्री का काम है. बोलो है या नहीं? बोलो बोलो. इस प्रकार कौन कहता है? अजीत कहता है. किससे? अपनी पत्नी शोभा. तो यह इसकी इस बात से हमें क्या पता चलता है कि अजीत घर की सारी जिम्मेदारी को अपनी पत्नी पर रखना छोड़ना चाहता है. घर की जिम्मेदारी किसकी होती है अजीत की दृष्टि से? स्त्री की होती है, औरत की होती है. वेरी गुड शोभा. अच्छा मान लिया, सरी ओपकोंडे, मान लिया. अब जरा यह भी बता दीजिए कि घर के आदमी का क्या काम है? तो सारा काम औरत ही करेगी, तो घर का जो आदमी है ना, पुरुष, वह क्या करेगा? आदमी का क्या काम है? घर की हर चीज को इधर उधर फेंकते फिरना. ओहो, आपका काम है हर चीज को इधर उधर फेंकना. ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಸೆಯೋದು ಬಿಸಾಡೋದು ನಿಮ್ ಕೆಲಸ. ಸರಿ ಜೋಡಿಸೋದು स्त्रियों का काम है क्या? फिर दुनिया भर का शोर मचाते हो. ಏನು ಒಂದು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ? क्यों? तो यहाँ शोभा पूछती है. अजीत हाँ हाँ हंसती है, हंसता है. शोभा समझती तुम सब हो, तुम सब कुछ समझती हो, तुम होशियार हो. अरे बीवी अपनी बड़ी समझदार है. मेरी बीवी तो, बीवी का मतलब पत्नी, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತೂ ಬಹಳ इंटेलिजेंट समझदार है. भीतर से आवाज आती है. भीतर का मतलब अंदर से, घर के अंदर से. ये उस रूम में है तो अंदर से कोई बुलाती है. मम्मी मम्मी हमारे मोजे कहाँ रखे हैं? मोजे का मतलब है सॉक्स. मम्मी मम्मी हमारे मोजे कहाँ रखे हैं? शोभा अजीत की ओर, अजीत को देखती है. अजीत को देखने का मतलब क्या है? जैसे तुम हो वैसे, सेंटेंस पूरा कीजिए. वैसे बच्चे तुम्हारी बेटी, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳೆ ಅಲ್ಲ ಮಗಳಲ್ವಾ? ಜೈಸೆ तुम्हारे बच्चे. ಆದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ಮಗು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. तो जैसे तुम हो वैसे तुम्हारी ಬೇಟಿ. ಅವಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಸ್ ನ ಹುಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. मोजे कहाँ रखे है शोभा? देता शोभा लो अब बिटिया को मोजे नहीं मिल रहे. बिटिया ಅಂದ್ರೆ ಬೇಟಿ, उसे मोजे नहीं मिल रहे हैं, ಸಾಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
उसे समझाओ भाई। अजित बोलता है, उसे समझाओ भाई कि अपनी चीज संभाल कर रखा करे, अपनी चीज संभाल कर ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳು ನೀನು। देखो यहाँ अजित खुद अपनी चीज नहीं रखता, लेकिन कहता है अपनी बेटी को तुम सिखाओ। यह शिक्षा तो तुमको देनी चाहिए उसे कम से कम ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟನ್ನಾದ್ರೂ ನೀನ್ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ। शोभा जाते जाते, अच्छा जी, तो आप यह कह रहे हैं लापरवाही से चीजें रखने में वह आपकी बिटिया नहीं गुरु है, आप मुझे ऐसा कह रहे हैं? उसे समझाने के लिए आप खुद जानते नहीं, चीजों को कैसे रखी जाती है वह आप खुद नहीं जानते, लेकिन आप मुझे बता रहे हैं तुम उसे सिखाओ। चीजों को लापरवाही अंदर केयरलेस आगी इधर से उधर उधर फेंकने में वह आपकी शिष्या नहीं, आपकी बेटी नहीं, आपकी गुरु है। ನಿಮಗೆ ಗುರು ಇದ್ದಾಗ ಅವಳು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುನು ಅವಳದು ಒಂದು ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ। एक जगह पर नहीं मिलते, वह प्रस्थान करती है, वह चली जाती है। क्या ढूंढ कर देने? अपनी बेटे सॉक्स। यस। अजित जल्दी जल्दी हजामत समाप्त करता है, नहाने के लिए भीतर जाने लगता है। नहाना ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ भीतर जाने लगता है। शोभा का प्रवेश। अजित हजामत का सामान उठाते हुए, देखो मैं अपना सामान अपने 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 आप साफ करने ले जा रहा हूँ। ನೋಡು ನಾನೇ ಶೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬ್ರಷ್ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನೋಡು ನೋಡು ಅಂತ ಇರೋದು। ಶೋಭಾ बोलती है, बड़ी मेहरबानी आपकी, ದೊಡ್ಡ ಕೃಪೆ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು, बड़ी मेहरबानी, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ। अजित बोलता है, तुम जरा कमरा ठीक कर दो, हो सकता है मिस्टर अग्रवाल को मुझे अपने साथ ही लाना पड़े। तुम मेरा कमरा जरा ठीक कर दोगे, क्योंकि आज मुझे किसको साथ में लेके आना है? अग्रवाल शायद मेरे साथ आने वाले हैं। अग्रवाल कोई पात्र है, ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। वैसे मैं लाऊंगा नहीं, फिर भी मैं उन्हें बुलाऊंगा नहीं, फिर भी अगर वे आ जाएंगे तो कमरा ठीक नहीं है, अस्त व्यस्त है तो क्या अच्छा लगता है? इसीलिए जरा तुम क्या करो, कमरे को साफ कर दो। मैं तब तक क्या करके आऊंगा? नहा के आऊंगा। नहा के आना, स्नान करके आऊंगा। इस प्रकार वह चला जाता है। शोभा कमरा ठीक करते हुए, चाहती हूँ सवेरे कम से कम घंटा आधा घंटा रियाज के लिए ही निकालूं। मेरे मन चाहता है कि दिन में आधा घंटा, सवेरे में आधा घंटा रियाज ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ, ಅಭ್ಯಾಸ। रियाज का मतलब अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ। क्योंकि जो गाना गाते हैं ना, गायिका होते हैं ना, वे सुबह प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि सुबह प्रैक्टिस करने से क्या होता है? आवाज हमारी अच्छी होती है, ऐसा कहते हैं, है ना यशस्वी? ಹಾ ಸರ್, ನಿಜಾನಾ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಹೌದು ಸರ್। ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ? ಹಾ बेलिगे प्रैक्टिस। लेकिन यहाँ शोभा भी प्रैक्टिस करना चाहती है। क्या करना चाहती है? प्रैक्टिस। रियाज, रियाज आ वर्ड इट्ಕೊಳ್ಳಿ। रियाज के लिए निकालो, सो भी नहीं हो पा रहा, नहीं हो पाता। लेकिन उसे समय मिलता है क्या? नहीं मिलता। नहीं। यहाँ किसी से भी तो अपना काम नहीं होता, कोई अपना काम करने वाला नहीं है। अजित भी नहीं करता, बेटी भी नहीं करती, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। घर का काम देखो, घर का सारा काम मुझे करना है। कॉलेज का काम देखो, कॉलेज में भी पढ़ाती है, कॉलेज में जाकर वो संगीत पाठ पढ़ाती है। कॉलेज का काम देखो, ऊपर से नौकर और चला गया है, और घर में जो नौकर था वो भी काम छोड़कर चला गया है। अब सारा काम मैं अकेली कैसे करूं? यह कौन कहती है? ಶೋಭಾ कहती है। ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ಅಮ್ಮನು ಆತರ ಹೇಳಿದಾರ ಯಶಸ್ವಿ? ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ? ಅಜಿತ್ ತರ ಅಲ್ಲ, ಅಜಿತ್ ತರ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ಸರ್। ಚಲಾ ಗಯ। ನೀನು ಸಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ಯಾ ಅಮ್ಮನ್ನ? ಇಲ್ಲ ಸರ್। ಇಲ್ಲ। ओके। अजित प्रवेश करता है, बिना बटनों के कफ लटक रहे हैं। ಬಟನ್ ಇಲ್ವಂತೆ ಶರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಹೀಗೆ ನೇತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ। सामने के बटन भी खुले हैं। अजित, अरे शोभा
कमीज में बटन भी लगा कर नहीं रखे। देखो ये बटन भी निकल चुका है, इसे भी तुमने लगा के नहीं रखा। देखना सरी जल्दी हो, ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೊರಟೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಹಾಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ ನೋಡಿ ಈಗ। ಜರಾ ಜಲ್ದಿ ಸೆ ಶೋಭಾ ಬಟನ್ ಲಗಾತೆ ಹದ್ ಹೇ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಅಂತ, ಹದ್ ಹೋಗೈ ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಅತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹದ್ ಹೇ ಯಾನಿ ಕಿ ಆಪ್ ಅಪ್ನೆ ಬಟನ್ ಭಿ ನಹಿ ಲಗಾ ಸಕ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ವಾ, नहीं लगा सकते। अजीत कहता है अब तुम चाहे कुछ भी कह लो पर इस सब के लिए जिम्मेदार तुम ही हो, समझे? तुम कुछ भी कह लो लेकिन सबके लिए जिम्मेदार कौन हो? तुम ही हो। ये सब पहले देखना था, तुमने क्यों नहीं देखा? क्योंकि घर की सारी चीजों को ठीक रखना किसका काम है? स्त्री का कर्तव्य होता है, तुम्हारा कर्तव्य है, तो तुमने पहले क्यों नहीं देखा? इसलिए इसके लिए भी जिम्मेदार कौन? तू ही है। इस प्रकार अजित कहता है। शोभा हाँ सो तो हूं हौದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನೇನೆ। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी खराब काम हो, दुनिया के घर में नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में, ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿ, खराब काम हो, जिम्मेदार कौन होगी? शोभा ही होगी। घर का काम ठीक समय पर नहीं होता, मैं जिम्मेदार। तुम अपना काम नहीं करते, मैं जिम्मेदार। अप्पी काम नहीं करती, अप्पी कौन है? बोलिए। अप्पी बेटी, वेरी गुड। अप्पी काम नहीं करती, मैं जिम्मेदार। नौकर चला गया, मैं जिम्मेदार। नया नौकर नहीं मिल रहा, मैं जिम्मेदार। नल का पानी चला जाता है, नली नीर बरलीला, मैं जिम्मेदार। हर चीज के लिए कौन जिम्मेदार है उस घर में? शोभा। अजीत बोलता है अरे बस बस ಸಾಕು ಸಾಕು ನಿಲ್ಸು, ಏನು ಒಂದೇ ಸಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟ ಅಂತಿದ್ಯಾ, ಮೈ ತೋ ಅಪ್ನಿ ಬಾತ್। ಈಗ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದು ಕಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಝೂಮ್? ಈಗ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದೇನಲ್ವಾ? ತೋರಿಸ್ತುಂಟಾ? ನನಗೇನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ದಾಗಿತ್ತು। ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು? ಈಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇನೋ ಬಂತು, ಯಾರೋ ಹೇಳ್ದಾಗಿತ್ತು, ನೋಡೋಣ। ಕಟ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಹಲೋ ಓಕೆ ಹಾ, ಈಗ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಕಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 5 ವರ್ಗು ಮಾಡ್ಲಾ? ಹಾ ಓಕೆ ಸರ್, 5 ವರ್ಗು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ? 1 ಅವರ್ ಇರ್ಲಿ, ಓಕೆ। अरे बस बस मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, जानती हो? मैं अपने हॉस्टल में, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, जानती हो? मैं अपने हॉस्टल में व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था, पूरे हॉस्टल में मैं अपनी व्यवस्था, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಡೀ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ನಾನು ಪ್ರಸಿದ್ಧತಾ। अपना ही नहीं अपने सब दोस्तों का काम भी किया करता था, मैं खुद का नहीं, सारे दोस्तों का काम भी मैं करता था हॉस्टल में। और ये जो जयंत साहब है ना, जयंत नाम सुना है ना? उसकी पत्नी कौन है, किसी को याद है? जयंत मीना। मीना, वेरी गुड, मीना। हाँ करेक्ट। जयंत साहब है ना, जिनका उदाहरण तुम बात बात में देती हो, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವನ एग्जांपल ಕೊಡ್ತೀಯಲ್ಲ, जयंत को देखकर सीखो, जयंत को देखकर सीखो, बात बात पर देती हो ना। इनके कायदे से रहना मैंने ही सिखाया था, ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಕಲಿಸಿದ್ಯಾರು? उसे मैंने सिखाया था, हम दोनों हॉस्टल में एक साथ थे। और आज अंग्रेजी कंपनी में जाकर ये शेख ही चाहे कितनी बघारे, अंग्रेजी कंपनी में वो काम कर रहा है, तो अपनी शेख ही बघारना है ना, अपनी खुद की तारीफ करता है, तन्नन तान ತುಂಬಾ ಹೊಗಳುಕೊಳ್ತಾನಲ್ಲ, लेकिन उससे पहले हॉस्टल में मैंने उसको सिखाया है। गुरु तो उनका इनका मैं ही रहा हूँ, पर तुमने आकर मुझे एकदम बेकार कर दिया। मैं तो हॉस्टल में सबका गुरु था, सबको व्यवस्था में रहना मैंने सिखाया था। अब तुम्हारे आने के बाद मैं तो तुम्हारी दृष्टि में बेकार, बेकार अंद्रेनु यूस्लेस ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದವನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ। 3 साल पहले तक वह खातिर होती थी हमारी की अजित साहब चौपट। 3 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಅಜಿತ್ ಸಾಬ್ ಚೌಪಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಗೀತು, ಅಜಿತ್ ಸಾಬ್ ಕತೆ ಮುಗೀತು, ಈಗ ನನಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ।
ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೀನು, ಈಗ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನೋ केयर इल्ला। चौपट, तुम ही ने बिगाड़ा और अब तुम ही नाराज होती हो। पहले मैं अपना काम खुद करता था, लेकिन तुमने क्या किया, सारा काम करके मुझे दिखा दिया और मैं आलसी बन गया। अब तुम दोष मुझ पर ही डाल रही हो। करेक्ट अल्वा? ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನಿಜ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದ ಹೊಸರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡುವ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡ್ರಿ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮರ್ತ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ನೀವು ನನ್ಗೇನು ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪೇ ಮಾಡಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅನ್ನೋದು, ಹೇನಾ? ऐसी स्थिति हो जाती है ना? आगे क्या पता नहीं, आगे क्या होगा देखेंगे, आपके जीवन में नहीं, यहाँ नाटक में। ನೀವ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಶುರುವಿಂದಾನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ? शेखी चाहे मतलब क्या है सर? हाँ, शेखी चाहे ಶೇಖಿ ಬಗಾರ್ನ, ಶೇಖಿ ಚಾಹೆ ಕಿತ್ನಿ ಹಿ ಬಗಾರೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಖುದ್ ಕಿ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕರ್ನಾ ಅಂತ. ನಾನು ಹಾಗಿದ್ದೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ, ನಾನು ಹಾಗಿದ್ದೀನಿ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಖುದ್ ಕಿ ಪ್ರಶಂಸಾ ಜೋ ಕರ್ತೆ ಹೇನಾ, ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಹೊಗಳ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೊಗಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಓವರ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು, ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತಾರ ಗೊತ್ತಾ? ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಆ ತರ ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಖಿ ಬಗಾರ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓತೋ ಬಹುತ್ ಶೇಖಿ ಬಗಾರ್ತಾ ಫಿರ್ತಾ ಅಂದ್ರೇನು ತುಂಬಾ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅವನು, ಆದ್ರೆ ಹೊಗಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಾರಲ್ವಾ ಹಾಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಯಂತ್ ನೀನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನಲ್ಲ, ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ತಪ್ಪು, ಅವನು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? तो किसके प्रति थोड़ी सी असूया है, किसके प्रति है असूया? ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೋಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸೂಯೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? यस, तो जिनका उदाहरण तुम बात बात पर देती हो ना, और गुरु तो न हो आಯ್ತಲ್ಲ ಇದೆ, 3 साल पहले तक वह खातिर होतिದ್ದು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ तुम ही ने मुझे बिगाड़ा और तुम ही नाराज होती हो। गाने के स्वर में, गाना गाने के स्वर में शोभा जी ने निकम्मा कर दिया वरना हम भी आदमी थे काम के, ಇದನ್ನೊಂದು ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನನಗೆ ಹಾಡ್ ಬರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಇದೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕರ್ದಿ ಅಂತ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿದೀರಾ? ಯಾರು ಇದು ಹಾಡಿ ಒಂದು ಲೈನ್? ಹೇಳ್ಬೇಕು ಈ ಸಾಂಗ್ ರಾಗದಲ್ಲಿ. ಶೋಭಾಜಿನೇ ನಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕರ್ದಿ ಅಂತ, ವರ್ಣಾ ಹಂಬಿ ಆದ್ಮಿ ಥೇ ಕಾಮ್ಕೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಸಿಂಗರ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಸದ್ಯ? ಹೇಳು ಅದನ್ನ ಒಂದು ರಾಗದಲ್ಲಿ. गाओ, और कोई नहीं, हम 3-4 लोग ही है ना, सभी है ना? अनुषा, यश और हाँ गा रही है कोई गा रही है? शामिली गा रही है क्या? नहीं सर, मैं नहीं। मैंने गाना सुना अभी, कहाँ से? गाने की आवाज आ रही है ना? हाँ सर। कौन गा रही है? कौन गा रही है? अच्छा, हाँ मैं आगे बढ़ूं? ओके, शोभा जी ने निकम्मा कर दिया वरना हम भी थे आदमी काम के। शोभा कहती है मुस्कुराते हुए, पता नहीं किस जमाने में तुम काम के थे। किस जमाने में तुम काम के ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದ್ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ಯಪ್ಪ, ನನಗಂತೂ ನೀನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ತರ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. पता नहीं तुम किस जमाने में थे ऐसे, मैं तो आई हूँ तब से ऐसा ही बेकार देख रही हूँ। जब से मैं आई हूँ ना, तब से तुम बेकार ही हो, बेकार, यूजलेस, निष्प्रयोजक, कुछ ठहर कर। यह सच है कि अब मैं तुम्हारी उतनी देखभाल नहीं कर सकती। हाँ सच है, पहले जैसी देखभाल मैं तुम्हें नहीं कर पा रही हूँ. ಮುಂಚೆಷ್ಟು ಕೇರ್ ಮಾಡಕ್ ನನ್ನಿಂದ ನಿನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. पहले तुम्हारे और घर के सिवाय और कोई काम ही नहीं था, सो सारे दिन उसी में लगी रहती थी. पहले मैं घर का काम करती और तुम्हारी सेवा करती, कोई दूसरा काम नहीं था. लेकिन अब उतना काम
कॉलेज के साथ संभव नहीं होता। अब कॉलेज भी जाना पड़ता है, कॉलेज में वहां मुझे पढ़ाना है, इसलिए मुझे समय कम मिल रहा है, इसलिए तुम्हारी और तुम्हारी उतनी देखभाल नहीं हो रही है। नौकरों का हाल तो तुम देखते ही रहे हो, और नौकर तो 1 महीने के लिए आते हैं तो 2 महीने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। अजित, तो मैं क्या करूं, मुझसे भी अब यह सब काम नहीं होता, मैं क्या करूं शोभा, मुझसे भी नहीं होता, ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈಲೂ ಆಗಲ್ಲ। शोभा बोलती है, जरा सा ध्यान देने की बात है, जब मैं पढ़ती थी तब तो तुम काफी काम किया करते थे, मेरी शादी के बाद या हमारी शादी के बाद तुमने मुझे पढ़ाया। ನೋಡಿ ಇವಳಿಗೆ ಓದಿ ಡಿಗ್ರಿ ಓದಿಸಿದ್ದಿದ್ದೆ ಯಾರು, अजित ने पढ़ाया है। आ टाइम तुमने मुझे बहुत मदद की थी, तुम काफी काम किया करते थे, मने केल्स तुम्बा ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, अप्पी को भी संभाल लिया करते थे, अप्पी तब बहुत छोटी थी, उसे संभालते थे तुम, कितना हाथ बंटाते थे, हाथ बंटाना ಅಂದ್ರೇನು ಸಹಕರಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು। मेरा आखिर अभी ही क्या हो गया, लेकिन अब तुम एक काम भी घर का नहीं करते, पहले इतना समय क्या तुम्हें मिलता था, अब अचानक तुम्हें समय क्यों कम हो गया, तुम आजकल तो मुझे मदद करते ही नहीं, इस प्रकार शोभा कहती है। अजित कहता है, तब की बात ही और थी, मैं तो चाहता हूँ वे दिन फिर लौट आए। आ दिनದ ಮಾತುಗಳೇ ಬೇರೆ, मैं चाहता हूँ, मेरे मन में वही इच्छा है कि वे दिन वापस आए लौट कर। आजकल आधी जान तो यह कमबख्त ऑफिस ही निकाल लेता है, मेरा आधा समय ऑफिस में काम में ही चला जाता है। तनख्वाह अच्छी भले ही देते हो, पर तेल भी पूरा निकाल लेते हैं। तनख्वाह का मतलब है वेतन, सैलरी, अच्छा वेतन देते हैं, लेकिन पूरा तेल निकाल लेना, पूरा ಕಾಮ್ ಲೇನ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ, ಈಗ IT ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ, 1ಕ್ಕೆ 2ರಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ। ನೌಕರಿ ತೋ ಕಿಸಿ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಕಂಪನಿ ಮೇ ಮಿಲೆ ತಬ್ ಹೇ ಮಜಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಇರಬಹುದು। अंग्रेजी कंपनी मिले तब है मजा, साला जयंत ऐश करता है, अच्छा अभी तो चला, साला जयंत है ना, वो ऐश करता है, मजे में है, उसे कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसे अंग्रेजी कंपनी में नौकरी लगी है, लेकिन मुझे तो नहीं मिली, इसीलिए वो आराम से है, लेकिन मेरी हालत ऐसी हो गई है। शोभा कमरा ठीक करके भीतर जाती है, पर दूसरे ही क्षण घंटी बजती है। यह कौन चला जाता है, अभी तो चला वो अजित चला जाता है, बाहर चला जाता है। घंटी बजती है तो आकर दरवाजा खोलती है मीना का प्रवेश, अब मीना घर के अंदर प्रवेश करती है। ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತ ವಾಯ್ಸ್?